Hello students, today we will discuss about worksheet 25 of class 9th, the chapter Fundamental Unit of Life. Today we will discuss about mitochondria and vacuoles. Now mitochondria is one of the cell organelle which is present in the cell, and all the necessary energy which is required to carry out various chemical activities is released by mitochondria, and that in the form of ATP. Full form of ATP is adenosine triphosphate. Now mitochondria is providing energy to the cell by producing ATP. So that is the reason why mitochondria is called as the powerhouse of the cell, as it produces ATP. The body uses this energy which is stored in the form of ATP for carrying out various activities in the cell, as the outer membrane of mitochondria is very porous and the inner membrane is deeply folded. As you see in the picture, the outermost membrane is porous and the inner membrane has many folds. And what is the use of this folded membrane? It increases the surface area. So that means mitochondria has a double membranous structure, and mitochondria has its own DNA and ribosomes. Now the main function of mitochondria is to produce and store and release the energy in the form of ATP. It is the site for cellular respiration in which ATP is प्रोड्यूस्ड. अब एक बार वर्कशीट को हम हिंदी में भी देख लेते हैं. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी के बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिका का अंगक है. अब जैसा कि हमें पता है कि कोशिका के अंदर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हमें आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन वो कहाँ से प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करके कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है. इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहा जाता है. अब एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया के द्वारा भी होता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम देखें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह दोहरी झिल्ली का बना होता है. बाहरी झिल्ली जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और अंदर की झिल्ली जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अधिक वलित होती है, जिसके कारण उसका एरिया बढ़ता है. और माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इस माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में कॉलिकर ने देखा था. अब इसके मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना है एटीपी के रूप में. माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है. अब जैसा कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में अपने राइबोसोम्स होते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वैक्यूल्स. Now these vacuoles are very small in size in animal cells, but plant cells has a very large sized vacuoles which are centrally located in the cells. Now in plant cells, these vacuoles are full of cell sap and provides turgidity and rigidity to the cell. Now many such substances are present in vacuoles, and these substances are like amino acid, various organic acids, proteins, sugars, etc. And these substances has importance in the life of plant cell. Now these vacuoles are surrounded by a cell membrane which is known as tonoplast. And what is the function of the tonoplast? Is that it keeps the content of the cell sap separated from the cytoplasm of the cell. In unicellular organisms, specialized vacuoles plays an important role which carries out in expelling the excess of water and some of the waste from the cell. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियां बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी होती है।
अब पादप कोशिकाओं में जो रसधानियां इतनी बड़ी होती हैं उसके अंदर कुछ द्रव्य संग्रहित होता है। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि उपस्थित रहते हैं। रसधानी के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब यह जो टोनोप्लास्ट है वह कोशिका द्रव्य और रसधानी के द्रव्य को अलग रखती है। एक कोशिकीय जीव में अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने में रसधानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप वर्कशीट में देख रहे हैं, डायग्राम ऑफ वैक्यूल्स। नाउ एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. It is bounded by a single membrane called as tonoplast. Animal cells having vacuoles smaller or absent, and plant cells they have large vacuoles which occupies 90% volume of the cell, and it helps in maintaining the osmotic pressure of the cell and stores toxic metabolic products. कि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका में 90% स्थान घेरती हैं। अब एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेम वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। वैक्यूल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। Name the membranes of the vacuole. Write full form of ATP. Name 3 substances stored in vacuoles of the plant cell. माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर क्यों कहा जाता है? कोशिका का कोई एक कार्य बताइए। एटीपी का पूरा नाम। अब फर्स्ट आंसर अगर हम देखें कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज to perform different life processes is released by mitochondria in the form of ATP. That is why it is known as powerhouse of the cell. कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा ATP के रूप में चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन, वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का संश्लेषण अमीनो अम्ल के द्वारा, तो इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। नाउ थर्ड, वैक्यूल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल? प्लांट सेल। Name the membrane of the vacuoles, that is tonoplast. कि रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? पादप कोशिका, और इसकी झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब पांचवा क्वेश्चन, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखें। तो आंसर 5 के 3 पदार्थ हैं अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शुगर। अमीनो एसिड, प्रोटीन और शुगर। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, सारे आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहले वर्कशीट को ध्यान से देखें, उसके पश्चात क्वेश्चंस को अपने आप ढूंढने का प्रयास करें और फिर पीछे से आप आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।